Good morning, everyone. Welcome to Ansarkari. Today we will take up newspaper of 21st January. We will just go through the important articles and also the important key phrases that will be important for examination. और डेटा वो तो लेंगे ही for note making. So starting with the first article. First article talks about the International Science Festival, which will start from 21st of January to 24th January. तो हाईलाइट क्या क्या है? तो आर्टिसन टेक्नोलॉजी फेस्टिवल, मेगा साइंस न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, स्टूडेंट्स इनोवेशन फेस्टिवल, स्टूडेंट साइंस फेस्टिवल एंड मेनी मोर. It will be held by Science and Technology Earth Science Ministry, Government of India, Department of Science and Tech, मध्य प्रदेश. उसके बाद फर्स्ट आर्टिकल is talking about the need to pay the publisher, न्यूज़ पब्लिशर फॉर द कंटेंट. मतलब अभी जो न्यूज़ पब्लिशर हैं दे पब्लिश द न्यूज़ ऑनलाइन और उनको कुछ नहीं मिलता है, और साथ ही साथ द ट्रैफिक जो इंक्रीज करता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, द मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉफिट आर टेकन बाय द बिग टेक कंपनीज सच एज फेसबुक, Amazon, web services, Apple, Google, etc. तो government has given some insight into the implementation of OSI model. मतलब कि ऑस्ट्रेलिया में जो मॉडल है रिगार्डिंग द न्यूज़ पब्लिशर्स पेमेंट बाय द बिग टेक, इसको फॉलो करना चाहिए, वो कहना चाह रहे हैं. Yeah, for the growth of news industry, it is very important that digital news platform of all these publishers who are the creator of original content get the fair share of revenue profit from the big tech platform. Australia, Canada, France and EU, European Union have taken initiative through their legislature and also the strength of their competition commission to ensure that there is a fair amount of split between the revenue between the creator of news and also the aggregator, that is big tech. उसी कारण जो ट्रैफिक है, डेटा ट्रैफिक है, वो बढ़ेगा और साथ ही साथ जो न्यूज़ का जो इम्पोर्टेंस है सोसाइटी के अंदर वो ग्रो करेगा. फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगा. देन सुप्रीम कोर्ट हैज़ अलाउड बिहार कास्ट सेंसस. तो अगर पहला आर्टिकल में देखा जाए, यहाँ पे एक और पॉइंट है नीचे में कि रिगार्डिंग द डिजिटल इंडिया एक्ट दैट विल बी पास्ड बाय गवर्नमेंट. उसमें क्या होगा? इट विल help to address the issue of disproportionate control and the imbalance between the dynamics between the content creation and also content creators monetization. जो भी पावर है एड टेक कंपनीज का वो ज़्यादा है इंडिया में, पूरा वर्ल्ड वाइड ज़्यादा है. तो उसको ब्रेक करने के लिए, जो मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए ये बिल आ सकता है, ये एक्ट आ सकता है. देन नेक्स्ट आर्टिकल is on page number 11 regarding the peace and stability in Jammu and Kashmir. तो इसमें सिर्फ कुछ जानने ज़रूरत ज़्यादा नहीं है. इसमें इम्पॉर्टेंट फ्रेज, इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स है उसको कैसे एग्जाम में लिख सकते हैं वो है. पहला, साइबर सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी is very important. Cyber security is very important for overall security of the state Jammu and Kashmir. Paramilitary, JNK police, intelligence agency, there should be a synergy, coordination between different intelligence groups. उसके बाद जो सरेंडरी मैकेनिज्म है, पीस अकॉर्ड मैकेनिज्म है, इसको भी मेन स्ट्रीम करने की ज़रूरत है, such that more insurgent will hand over weapons to the authority in future.
तो यही है इम्पोर्टेंट. The next article is on page number 12 regarding the collegium system. It is arguing that Supreme Court has said that the appointment and transfer of the judges of Supreme Court and High Court is a very opaque area. सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम सिस्टम के द्वारा जो गवर्नमेंट का जो क्रिटिसिज्म था उसको पब्लिक कर दिया. तो ये आर्टिकल कहना चाह रहा है कि द ऑब्जेक्शन टू द कोलेजियम गोइंग टू द पब्लिक रिगार्डिंग द ऑब्जेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज वेलकम स्टेप, पर इट इज़ सिलेक्टिव. ऑलरेडी कोलेजियम सिस्टम ओपेक है, इसको अगर मोर ट्रांसपेरेंट बनाना है तो देयर विल बी सम स्टेप्स रिक्वायर्ड, जो अभी ऐसे नहीं है. फर्स्ट, पहला जो इम्पोर्टेंट है कि it should not disclose the reason for few names only. मतलब कुछ नेम्स में ही डिस्क्लोजर नहीं देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को. कोई भी अगर रिकमेंडेशन है कोलेजियम सिस्टम में रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस या ट्रांसफर ऑफ जजेस, द अपॉइंटमेंट, द रिकमेंडेशन शुड हैव अ रीजन्ड रिस्पॉन्स. एक जो रिस्पॉन्स देती है सरकार को सुप्रीम कोर्ट, चाहे वो ऑब्जेक्शन हो चाहे रिकमेंडेशन हो, उसको पब्लिक होना चाहिए इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपेरेंसी. कुछ के लिए नहीं होना चाहिए, हर के लिए होना चाहिए, वो बताना चाह रहे हैं ये पूरा आर्टिकल. देन नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन पेज नंबर 15 रिगार्डिंग द सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर. तो इंडिया में अभी 2800 करोड़ रुपीस के इन्फ्लुएंसर मार्केट है. इट विल राइज टू 2800 करोड़ बाय 2025 एंड इट हैज़ मोर देन 1 lakh सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर. दिस शोकेसेस दैट सेड दे शुड बी more accountable, more responsible regarding the public nature of their activism or regarding the public nature of their influence operation. So government has made it mandatory for the social media influencer to disclose their material interests such as gift, hotel, accommodation, equity, discount, awards, etc. Then next article is regarding the Vagir. We have already discussed Vagir जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है. इट इज़ बिल्ट अंडर इंडियाज नेवी प्रोजेक्ट 75 बाय मोजांगोन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड. Next article is on page number 17 regarding the working with citizen. PM has said that officials should work with citizen. And in the Rozgar Mela, he has announced that he will give job to 10 lakh people. तो रोजगार मेला ये पूछ सकता है. Then next article is on page number 18 regarding the trademark violation. तो इसके पीछे में केस में इसे पीछे केस कौन सा है? तो सबवर्ब है, सबर्ब और सबवे, दोनों का जो एक लोगो है वो एक तरह से सिमिलर है, सेम नहीं है, सिमिलर है. तो सबवे ने सुप्रीम कोर्ट में जाके आर्ग्यू किया था कि सबवर्ब इज यूजिंग द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन एंड येलो, इट इज आइडेंटिकल टू द सबवे ट्रेडमार्क. तो सबवर्ब ने कहा, आर्ग्यू किया कि सबवे को लोग सबको ही जानते हैं क्योंकि वो वेल नोन ब्रांड है, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा कंज्यूमर के माइंड में. तो अगर पूछना चाहिए ट्रेडमार्क है क्या, इट इज सिंबल, डिजाइन, वर्ड, फ्रेज दैट इज आइडेंटिफाइड विद अ बिजनेस. बिजनेस का ट्रेडमार्क होता है. इट है द ट्रेडमार्क एक्ट 1999. इट गवर्न्स द रिजीम ऑन ट्रेड एंड मार्क एंड इट्स रजिस्ट्रेशन. उसका रजिस्ट्रेशन होता है और रिजीम जो पूरा प्रोटेक्शन है वो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंदर में दिया जाता है. इट इज रजिस्टर्ड विद द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क एंड इट इज वैलिड फॉर 10 years. इट कैन बी रिन्यूड
एवरी 10 ईयर्स, तो 10 साल के लिए वैलिड रहता है ट्रेडमार्क, और इट इज़ रिन्यूड एवरी 10 ईयर। कोई भी ट्रेडमार्क को अगर वॉयलेट करेंगे, अगर वहाँ पर डिसेप्टिव सिमिलैरिटी होगा, मतलब जो सिंबल है वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी कैट होगा, या तो एक रेप्लिका होगा ओरिजिनल का, या फिर ब्रांड लोगो ऐसा मिसस्पेल किया जाएगा कि इट विल बी नॉट ईजी फॉर द कंज्यूमर टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ओरिजिनल ब्रांड और न्यू ब्रांड। जैसे फॉर एग्जांपल नीचे दिया हुआ है कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, और नीचे में कैडिला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो ये दोनों जो कैडिला नाम है, लेकिन बाकी आगे में जो अलग दिया हुआ है, इससे कंपनी अलग अलग है, लेकिन जो ओरिजिनल है उसको डुप्लीकेट बना करके यूज़ किया नाम को, तो ये ट्रेडमार्क वायलेशन का पार्ट है। लेकिन यहाँ पर जो सबवर्ब है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कलर यूज़ करने के लिए, कलर पैलेट यूज़ करने के लिए ट्रेडमार्क वायलेशन होगा। द नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड डीड टू बंजारा शेड्यूल्ड कास्ट ग्रुप। तो बंजारा लंबिनी कम्युनिटी इज ए नोमैडिक शेड्यूल्ड कास्ट ग्रुप with a population in a backward district of Kalyana, Karnataka, region of North Karnataka। तो SC/ST की पॉपुलेशन कितना है? 24% है स्टेट में। ये बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द women in command role position। Approximately around 108 women officer in the army is now being cleared for the rank of colonel by January 22. They will serve in Signals, Army Air Defense Intelligence Corps, Army Service Corps, Army Ordnance Corps, etc. It is very important because it gives equal status to women with regarding to male counterparts. They will become more, they will be represented well in the Army, Air Force and Navy, और साथ ही साथ they will also command unit just like male officer. तो अभी हाउ मेनी वुमेन आर देयर इन इंडियन आर्म फोर्स? तो ऑफिसर का मात्रा में 1700 अप्रॉक्सीमेटली ऑफिसर है इन आर्मी, उसके बाद इन एयर फोर्स 1600 और 559 नेवी में। और कहाँ कहाँ पर कंट्रीज में दे हैव बीन गिवन द रैंक ऑफ कर्नल? यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, इजराइल एक्सेट्रा। लेकिन अभी भी they are not eligible in core combat army such as infantry, mechanized infantry, armored corps. Further, army is not open to women fighting war at border beside foot soldier. तो ये सब challenges हैं। बाकी women have been inducted into several streams such as army air defense, signals, engineer, army aviation, etc. तो ओवरऑल है, इसमें कुछ कुछ आंसर क्वेश्चन निकल सकता है जिसे सॉल्व कर सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग द ग्रीन एंड हाइड्रोजन एनर्जी। तो इंडिया हैज़ अप्रूव्ड $2.1 billion इंसेंटिव मैकेनिज्म प्लान फॉर लोकल प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी सो दैट द नेट जीरो कार्बन एमिशन टारगेट बाय 2070 विल बी अचीव्ड। दैट्स ऑल for today. Now coming to January 22, the first article talks about free childcare help and other incentive given by the Sikkim government so that there is increase in fertility rate। अभी जो फर्टिलिटी रेट है सिक्किम का बहुत ज़्यादा लो है। इट इज़ अराउंड 0.7 इन अर्बन एरिया एंड 1.3 इन रूरल एरिया, दैट इज़ वे बिलो दैन 2.0। रिप्लेसमेंट रेट होता है कि जितना पॉपुलेशन आ रहा है और जितना ख़त्म हो रहा है उसको बैलेंस करने के लिए 2.1 चाहिए, लेकिन अभी 0.89 है, इट इज़ वेरी लो। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए सिक्किम गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है उसके बारे में आर्टिकल है। पहला है कि
पहला पॉइंट है इसमें कि सैलरी इंक्रीमेंट किया जा रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ दैट इज हु इज़ ऑप्टिंग फॉर मोर देन वन चाइल्ड। उसके बाद सेकेंड पॉइंट इज द women government employees will be given child care attendant to take their care of the newborn for a year, then 365 days maternity leave और 30 days paternity leave। उसके बाद IVF जो प्रोसीजर है इसको फाइनेंशियल हेल्प मिला जाएगा। देन अदर पॉइंट्स इज regarding to recruit the women of age 40 years and above to depute them at the home of their women government employees. The attendants will be given monthly remuneration of around 10,000 rupees। तो ये सब जा करके जो सरकार चाहती है कि आने वाले वक्त में TFR रेट है वो बढ़े। The next article is on ASER report. ASER report is prepared by Pratham NGO. Apart from making a report on 6 to 13-14 years of age, they have also given insight on the material improvement in the rural India। यहाँ पर जैसे कौन कौन से फैमिली के पास कितना क्या सामान है और साथ ही साथ उनका मटेरियल कैसे इम्प्रूव हुआ है उसके हिसाब से डेटा उन्होंने पब्लिश किया है। फॉर एग्जाम्पल, पहला, हैविंग पक्का हाउसेस, it has risen from 31% to 47%। उसके बाद there has been risen in motorbike from 34% to 45%। Percentage of household having electricity connection was around 70% in 2010, it has risen to 94% in 2022। टेलीविज़न सेट 49% था 2010 में, अभी इंक्रीज होकर के 62% हो गया है। तो ये सब ओवरऑल दिखाता है कि कैसे मटेरियल प्रोग्रेस हो रहा है फ्रॉम रूरल एरिया, और साथ ही साथ जो एक ओवरऑल GDP ग्रोथ है क्या वो पहुंच रहा है निचले स्तर तक। तो इसका आंसर हाँ, अगर इसको कोट करेंगे एग्जाम में तब। देन नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो हमारे जो CGI हैं वो कहते हैं कि वेर एवर देयर इज़ अ लीगल आइडिया एंड वेर एवर देयर इज़ अ इशू बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग और साथ ही साथ लेजिस्लेशन ऑफ द पार्लियामेंट, देन द बेसिक डॉक्ट्रिन इज यूज्ड एज अ नॉर्थ स्टार टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द लीगैलिटी एंड अन। कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसको यूज़ करते हैं सुप्रीम कोर्ट, ताकि कोई भी जो लेजिस्लेशन है वो लीगल है या नहीं है। इट हैज़ बीन यूज्ड इन सेवरल कंट्रीज, और इसका जो एक डिफरेंट फॉर्मुलेशन है बेसिक स्ट्रक्चर का वो यूज़ हो रहा है अभी इन सेवरल कंट्रीज सच एज इन नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, लैटिन अमेरिका, अफ्रीकन कंट्रीज एक्सेट्रा। तो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट इंडिया में सिर्फ नहीं है, बाकी जगह में भी है। देन नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम में एक हमेशा एक इशू रहा है रिगार्डिंग द वेज और नॉन वेज, कि अंडा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो अगर एक पॉइंट लिख सके कि देयर शुड बी अ चॉइस गिवन टू द चिल्ड्रन रिगार्डिंग एग, और कि उसके अलावा बनाना, चिक्की एक्सेट्रा मिलना चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 80% ऑफ द मिड डे मील बेनिफिशियरी हैव चोजन एग ओवर ऑल्टरनेटिव सच एज बनाना एंड चिक्की। तो rather than giving compulsory egg to everyone, the government should initiate should implement such thing that they should be given opportunity, they should be given choice between egg, non-veg and veg। तो उससे क्लास भी नहीं होगा, इशू भी नहीं होगा, और साथ ही साथ आसानी तरीके से जो एफिशिएंसी वो बढ़ेगा स्कूल में। देन नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द थिएटर कमांड। तो आर्मी, नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स हैव बीन फॉर्मुलेटिंग plans regarding the theater command,
लैंड बेस्ड थिएटर कमांड दैट इज 1 ईच फॉर वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कमांड, और साथ ही साथ राइट नाउ देयर इज जॉइंट थिएटर कमांड दैट इज अंडमान एंड निकोबार कमांड, पहला है। दूसरा है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, दूसरा है। अभी तक बाकी जगह में नहीं हुआ है, वो स्टैब्लिश होगा। डिस्कशन एंड प्लानिंग इज गोइंग ऑन विद द आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, और कुछ साल में ये भी ऑपरेलाइज होगा। द नेक्स्ट आर्टिकल is on page number 8 regarding the IGP DGP meet with the Prime Minister. They have discussed regard the challenges of cryptocurrency, transport security, cyber world, and recommendation of previous committee and conference. The next article is on page number 11. तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1967 का गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस, इन विच सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर पार्ट 3 एंड इट कैनॉट बी रिमूव्ड बाय द पार्लियामेंट। उसके बाद इंपॉर्टेंट है केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, in which the Supreme Court has decided with ruling of 7:6 that basic structure is there in the constitution, and it is not defined by the constitution but it is there in the constitution. तो इसमें बताना चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीमेंसी होगा तो पार्लियामेंट कुछ भी कर सकेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से डिस्क्रिमिनेशन ला सकता है विथ रिगार्डिंग टू मेजॉरिटी कम्युनिटी, और साथ ही साथ इट विल ऑल्सो कार्व आउट सेवरल यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स। इट कैन रिस्ट्रिक्ट बिजनेस in each profession. It can give legislation that is discrimination regarding to women, regarding to LGBT minorities, etc. The list that is there with the state list and center list, the parliament can also add or remove from such list. तो ये सब लेकिन अभी नहीं कर सकता है, क्यों? Because it is subjected to judicial review, which shows that parliament supremacy is not there in India. Parliament powers is limited by the constitution because of the judicial review and the basic structure of the constitution. The next article talks about the FTA negotiation with India and UK. Right now $29-30 billion bond trade होता है between two countries, and they are talking about various barriers such as service, medical devices, IT sector, defense, etc. ये भी होगा आने वाले वक्त में। द नेक्स्ट आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ATI बॉन्ड। तो ATI बॉन्ड बस जानना जरूरत है कि है क्या ये। ATI बॉन्ड आर बेसिकली अनसिक्योर्ड बॉन्ड दैट हैव परपेचुअल टेन्योर। दीज बॉन्ड इशूड बाय द बैंक्स हैव नो मैच्योरिटी डेट, उसका कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होता है। उसके बाद दे हैव अ कॉल ऑप्शन विच कैन बी यूज बाय द बैंक टू बाय द बॉन्ड फ्रॉम द इन्वेस्टर इटसेल्फ। म्यूचुअल फंड जो है दे आर अमंग द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन दिस डेट इंस्ट्रूमेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।